Yes, good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and healthy at your homes. So, today we are starting with the new topic of your class 7th English grammar, that is prepositions, right? In prepositions, as you all know, that preposition is made up of two words. You can see pre and position. Prepositions, that is a word that is given the position pre to some other thing, that is ऐसे शब्द जिनको किसी और से पहले पोजीशन दिया जाता है एंड वो पोजीशन किस लिए दिया जाता है कि वो दो शब्द जिनके बीच में उसे हम पोजीशन दे रहे हैं वो उन दोनों का रिलेशन हमें शो कर सके. दैट इज preposition shows the relationship of a noun or a pronoun with another word in the sentence and they are usually followed by a noun or a pronoun. So होता क्या है, like if I say there is a book in the bag. बुक जो है कहाँ है, बैग के अंदर है, राइट. सो बुक इज अ नाउन एंड बैग इज अनदर नाउन. इन दोनों बैग्स, बुक और बैग, दोनों वर्ड्स का रिलेशन किससे पता चल रहा है हमें, ऑन से, कि बुक जो है रेस्टिंग पोजीशन में है इन द बैग. So whatever word shows the relationship of one noun or pronoun to the another word is known as prepositions. There are some very commonly used prepositions in English. What are they? Firstly, we'll see the headings, that is preposition of place and direction, preposition of time and date, and prepositions of travel and moment. So preposition of place and direction, it shows दो noun या pronouns जो होते हैं उनकी place show करेंगे या उनका distance का relation show करने की कोशिश करेंगे. Few examples are in, into, at, on, onto, to, over, across, in front of, behind, towards, above, below, near, beside, besides, along, for, under, beyond, between, and among. All these are the prepositions जो क्या show कर रही हैं, are showing the place and direction. Second one is, that is at, on, in, by, from, to, till, until, during, for, since, in, within, before, after. These are the prepositions that shows the time and date. Now the next one is from, to, by, out of, are, at, into, onto, in, on. These are the prepositions which show of travel and movement. So you can know, हम इन्हें usually जब हम language अपनी use करते हैं तो हम इनमें बहुत से prepositions को use करते हैं, correct? लेकिन तब हम हम अब इतना हम फ्लुएंट हो चुके हैं ना अपने लिखने में या बोलने में कि हम इनको रैंडमली यूज करते हैं. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वी क्रिएट अ ग्रामेटिकल एरर बट हमें ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल करेक्ट है और इसीलिए जब हमारे मार्क्स कटते हैं वी यूजुअली से दैट टीचर इज बीइंग पार्शियल एंड हमारे मार्क्स यहाँ पे उन्होंने कट कर दिए. बट एज सच आप उसको ग्रामेटिकली देखो तो वहां पे कुछ एरर होता है तभी मार्क्स कट होते हैं. So firstly we'll begin with some preposition with examples, that is the preposition of place and direction. इसका जो सबसे common preposition आता है ना वो in and into है. That I'll explain you combinedly. Suppose हम अगर बोलते हैं कि बिल्ली किचन में है और बिल्ली किचन में जा रही है, दोनों में हम जो preposition यूज करते हैं वो क्या है, में. किचन में और किचन में जा रही है, करेक्ट. अब में का इंग्लिश वर्ड हम लेते हैं इन, में हमारे लिए इन होता है एंड जब हम उसको बोलते हैं इफ वी से कैट इज इन द किचन एंड कैट इज गोइंग इन द किचन तो हमें ऐसा लगता है इट इज करेक्ट. कैट इज इन द किचन, फाइन, करेक्ट. एंड व्हेन वी से कैट इज गोइंग इन द किचन हमें ऐसा लगता है दिस इज आल्सो करेक्ट. बट इन लैंग्वेज आपके वैसे तो इसको कोई भी करेक्ट बोल देगा बट व्हेन यू attempt this question in the paper and teacher cut your marks then she is right at that point. क्यों? Because जब आप उसको in use करते हो ना usually वहां पे आपको in नहीं देना, आपको वहां पे क्या देना है, you have to give into. So जब भी कोई चीज resting position में होती है, when one noun is in the resting position in another noun तो वहां पे क्या use करते हैं, in.
एंड जब भी कोई दूसरी जगह पे एक नाउन मूवमेंट शो करता है तो हम वहां पे इनटू यूज करते हैं। जैसे हमने बोला बिल्ली किचन में है, बिल्ली ऑलरेडी किचन में है, वो रेस्टिंग पोजीशन में है, तो वहां में हमने बोला कैट इज इन द किचन। एंड सेकेंडली जब हम बोल रहे हैं कि बिल्ली किचन में जा रही है तो कैट इज स्टिल इन द मूवमेंट, तो वहां पे हम क्या बोलेंगे, कैट इज गोइंग इनटू द किचन। एंड उस वक्त वहां पे वो इनटू करेक्ट होगा, ना कि इनकरेक्ट होगा। फाइन। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है जो यूजुअली हम लोग उसको कंसिडर नहीं करते हैं, बट ग्रामेटिकली हमें उसे कंसिडर करना है। नेक्स्ट इज एट। एट इज यूजुअली जो होता है हम उसको यूज करते हैं व्हेन वी रिलेट टू अ प्लेस इन टर्म्स ऑफ इट फंक्शन एंड पर्पस। जब भी कोई फंक्शन या पर्पस के लिए, लाइक स्पेसिफिकली जब आप कोई प्लेस के लिए बात करते हो तो आप वहां पे क्या यूज करते हो, एट। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया है, हिज पेरेंट्स लिव एट लुधियाना, तो यहाँ पे लुधियाना इज अ प्लेस, तो वहां पे क्या हुआ, एट आ गया। Then comes on. On is used for a fixed point on a surface and for public transport. जैसे आपने on को in को किया था ना, सिमिलर वे में on होता है, इसके साथ में on to और upon भी होते हैं। तो जैसे हमने बोला कि बुक इज ऑन द टेबल, सो बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर रेस्टिंग पोजीशन में है, तो वो क्या होगा, ऑन द टेबल। एंड सपोज इफ आई से कि इस बुक को टेबल पर रख दो, कीप द बुक अपॉन द टेबल या कीप द बुक ऑन टू द टेबल, तो जब ऑन टू और अपॉन जब चीज मूवमेंट में होगी तो वहां पे क्या आ जाएगा, आइदर अपॉन और ऑन टू। बट ऑन कहाँ आएगा, जब कोई चीज रेस्टिंग पोजीशन में होगी, या फिर सेकेंडली जब हम उसको यूज करते हैं, सेकेंड यूज होता है जब भी आप कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हो। लाइक यहाँ पे देखो जेट एयरवेज को यूज किया है ना, वी ऑल ट्रेवल्ड ऑन द जेट एयरवेज, तो जेट एयरवेज क्या है, इज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, ऑन। देन कम्स ओवर। ओवर क्या होता है, when something or somebody is on the surface completely covering it, and जब वो चीज across from one side and goes to the other side, either we can say side or falling from down from a place, तो उसको like suppose कि दोनों चीजें क्या हैं, एक सरफेस के दूसरे सरफेस के ऊपर हैं, बट उनके सरफेसेस जो होते हैं वो आपस में हम बोलेंगे कि वो टच नहीं करते हैं। तो हमने यहाँ बोला डियर जम्प्ड ओवर द फेंस, तो डियर ने क्या किया, जंप किया ओवर द फेंस, कि वो फेंस की एक तरफ था, एंड इट जंप्ड एंड क्रॉस्ड द फेंस टू द अदर साइड। एंड सिमिलरली अंजू हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर द हेड, तो उसने हेड के ऊपर, सिमिलरली आप दो सरफेस हैं, एक आपका हेड है एंड दूसरा सरफेस अम्ब्रेला का है, बट वो दोनों सरफेसेस आपस में टच नहीं हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवर बोलेंगे। देन कम्स अक्रॉस। अक्रॉस हमें मालूम है, इसको ज्यादा कोई समझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो अक्रॉस इज फ्रॉम वन साइड टू द अनदर, दैट इज द एथलीट रन अक्रॉस द लॉन, वो लॉन की एक साइड से दूसरी साइड तक रन किए। देन इज इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ क्या होता है, जब भी कोई एक चीज दूसरी चीज के सामने पोजीशन ले लेती है, व्हेन it is used to tell a position that is further forward than something or somebody and but not very far away, that is he parked his car in front of the gate of our house, हमारे गेट के, घर के गेट के सामने उन्होंने अपनी कार को पार्क किया, so that is in front of। and ऑन द अदर हैंड जब हम बिहाइंड को देखते हैं, तो बिहाइंड मीन्स, बिहाइंड क्या होता है, पीछे, ठीक है, बिहाइंड हो जाएगा पीछे की तरफ, तो जैसे वो फ्रंट था वो बिहाइंड हो गया, व्हेन एक चीज जब दूसरी चीज के पीछे होती है, दैट इज बिहाइंड। सो नैना इज हाइडिंग बिहाइंड दैट ट्री, नैना कहाँ हाइड कर रही है, बिहाइंड दैट ट्री। Then comes towards. Towards is show the direction of somebody or to mean closer to a point in time in relation of somebody. Towards हमें पता है, हम बोलते हैं he is coming towards us, he is going far from us. तो towards basically direction show करने का काम करता है, and it is used to mean in direction of something or somebody. एग्जाम्पल देखोगे, द कमांडोज वर मूविंग टूवर्ड्स द हाइडिंग प्लेसेस ऑफ द किडनैपर्स, कमांडोज जो थे किस तरफ जा रहे थे, तो तरफ मतलब डायरेक्शन शो करना। एंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ मैच, मैच एंड होने की तरफ था, द प्लेयर लुक्ड एंथुसियास्टिक, सो दीज टू थिंग्स आर शोइंग द डायरेक्शन ऑफ समथिंग और समबडी। देन कम्स अबव एंड बिलो। अबव एंड बिलो इसको हम साथ में समझेंगे। अबव जिसको हम बोलते हैं ऊपर, एंड बिलो जो होता है नीचे। अबव इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ एट और टू हायर प्लेसेस, हायर प्लेसेस पे होना इज अबव। जैसे कि हम काइट्स जब फ्लाई होती हैं तो हम बोलते हैं ना, काइट्स आर फ्लाइंग अबव इन द स्काई, द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड। तो ओवर एंड अबव समवट सिमिलर होता है, बट ओवर का डिस्टेंस कम होता है और अबव की हाइट बहुत ज्यादा
हाइट पे होती है चीज। एंड बिलो यूजुअली क्या होता है, एट अ लोअर पोजिशन, लोअर देन समथिंग और समबडी। जैसे मैं बोल दूं कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल, तो कैट और टेबल दोनों है, बट वन थिंग इज सिटिंग बिलो एट द लोअर लेवल इन द पोजिशन फ्रॉम द अदर थिंग। So answer the questions given below. Temperature is today is below 1 degree Celsius. When somebody or something is at a lower position than somebody or something, तो वहां पे हम below को use करते हैं. Then comes near. Near always shows a shorter distance away from something or somebody and at a short period of time from something. So he lives at Patel Nagar near metro station. ठीक है, तो ये क्या है, shorter distance show कर रहा है. तो कोई भी चीज जब shorter distance show करती है तो वो क्या होता है, near. Then comes along. Along क्या होता है, is used. Along is used to depict from end to towards the end of other things. Along हमेशा यूज करेंगे from one end से जब दूसरी end, हम बोलते हैं ना walk along the road, तो आप रोड के एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हो, रोड के साथ साथ आप दूसरी तरफ तक चलते हो. सिमिलरली रिवर बैंक्स के साथ में भी ऐसा ही होता है, जब आप रिवर बैंक्स पे वॉक करते हो तो यू जस्ट वॉक along the river banks. Then beside एंड besides, these two will go together. आप देखो दो चीजें होती है, एक हम बोलते हैं कि ये मेरे पास में, साइड में, और एक होता है इसके अलावा. ठीक है, दो वर्ड समझ रहे हो, साइड में और इसके अलावा. तो जब हम बोलते हैं, सपोज मैं बोलूं माय ब्रदर इज सिटिंग बिसाइड मी, मेरा भाई मेरे पास में बैठा है, दैट इज नेक्स्ट टू समवन और समथिंग. सो माय ब्रदर इज सिटिंग बिसाइड मी. सो सिमिलरली यहाँ एग्जांपल देखोगे, द ओल्ड वुमन टुक हर सीट बिसाइड द कंडक्टर, तो वो कंडक्टर के साइड में बैठ गई. एंड बिसाइड दैट इज इन एडिशन टू, इसके अलावा, तो हम बोलते हैं ना इसके अलावा आपके पास क्या है और दिखाइए, तो वहां पे क्या होता है, इन एडिशन टू समथिंग. तो सिमिलरली हियर वी सेज बिसाइड लर्निंग डांस शी आल्सो परफॉर्म ऑन स्टेज. डांस लर्न करने के अलावा वो स्टेज पे परफॉर्म भी करते हैं, तो क्या हो गया, बिसाइड्स. नाउ कम्स फॉर. फॉर इज यूज टू शो समवेयर. फॉर किस लिए यूज होता है, इज यूज टू शो somewhere that he goes for his swimming classes. वो डेली अपने स्विमिंग क्लासेस के लिए जाते हैं, तो फॉर यहाँ पे क्या शो कर रहा है, somewhere. Where is he going daily? He is going to the swimming classes. Then comes under. अंडर जैसे हमने बिलो किया था वही चीज है, बस यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज बिलो द सरफेस होता है, लेस देन होता है टू एक्सप्रेस द पर्टिकुलर प्रोसेस, दैट इज, या कोई प्रोसेस को भी एक्सप्रेस करता है अंडर. बिलो को आप प्रोसेस एक्सप्रेस नहीं कर सकते. जैसे हम बोल देंगे द बाइक इज अंडर रिपेयर, कि बाइक अभी रिपेयरिंग में दी हुई है, तो इट इज अंडर प्रोसेस ऑफ बीइंग रिपेयर. तो यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोल सकते द बाइक इज बिलो रिपेयर, तो वहां पे आपको क्या यूज करना पड़ेगा, द बाइक इज अंडर रिपेयर. तो स्पेशल थिंग, जो स्पेशल केस में जहां अंडर यूज होता है वो होता है टू शो दी पर्टिकुलर प्रोसेस, या फिर अकॉर्डिंग टू लॉ. जैसे हम बोलते हैं ना अंडर दी एक्ट सो एंड सो, ये आप ऐसा नहीं कर सकते, तो कोई लॉज शो करने के लिए भी अंडर को यूज करते हैं. देन कम्स बियॉन्ड. बियॉन्ड हम बेसिकली यूज करते हैं shows the further side of something, more than something, to say that something is impossible, too far of something or somebody. Beyond होता है beyond the range, beyond the limit. जब कोई चीज किसी एक लिमिट के पार चली जाती है, that is beyond. हम बोलते हैं ना कोई चीज हमारी सोच से बहुत परे होती है, तो हम बोलते हैं beyond our imaginations. तो वहां पे सो nobody is beyond the reach of the law. कानून की पहुंच से बाहर कोई भी नहीं है, तो पहुंच से बाहर होना is beyond. तो वहां पे हमने ये यूज किया. देन कम्स बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन एंड अमंग को भी हम इन पेयर लेते हैं, टुगेदर. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर दो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पे तीन लोग हैं, देखो रत्ना, ऋतु और रवि. रवि रत्ना और ऋतु के बीच में बैठा है, तो रवि इज सिटिंग बिटवीन द टू, तो वहां पे हमने क्या लिया, टू. जब दो के बीच की बात होती है तो वहां पे आता है बिटवीन, एंड मोर देन टू आता है. अब इसी तरीके से मुझे अगर कहना हो कि रवि जो है अमंग दी स्टूडेंट्स बैठा है, खूब सारे बच्चों के बीच में बैठा है, तो वहां अमंग हो जाएगा. रवि अगर रत्ना और ऋतु के बीच में है तो रवि ऑलवेज सिट्स बिटवीन रत्ना एंड ऋतु. एंड रवि अगर बहुत से बच्चों के बीच में बैठा है तो रवि इज सिटिंग अमंग द चिल्ड्रंस. So between क्या है is used in sense of into the space separating two objects, people, day, etc. That is Ravi always sits between Ratna and Ritu. And among is used in the place of between.
जब ये कंपैरिजन या जब हम बात करते हैं मोर देन टू थिंग एंड पीपल आर इन्वॉल्व, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अमंग। सो यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट एग्जांपल दिया है। अर्लियर हमने एग्जांपल लिया था रवि वाज सिटिंग अमंग द चिल्ड्रन, बट यहाँ पे इन्होंने जो एग्जांपल दिया है, देखो, ग्लोबल वार्मिंग इज अ कॉमन टॉक अमंग द कंट्रीज। सो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक कॉमन टॉक हो गई है अमंग द कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में। फाइन। सो with this, we can say the prepositions are well explained to you, and I hope and hopefully you all have understood it also clearly. So आप इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, and I hope आप इसको समझ चुके होंगे. So आप इसको पढ़ें and stay home, stay safe, take care of yourself, and students, please do keep studying.